So good morning, all of you. My name is Rahul Saraswat. I'm an assistant professor in Mechanical Engineering Department, Engineering College, Bikaner. So in our lecture number fifth, we learned about the definition about the term the flexible manufacturing system. So in this particular lecture, we'll learn about the classification of FMS, classification of flexible manufacturing system or types of a flexible manufacturing system. So सबसे पहले जो इसके टाइप में है वो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सिंगल मशीन सेल. So what is single machine cell? So it contains one machine. It may be a CNC machining center. It may be a machining center which is connected to a parts storage system which can load and unload parts to and from the storage system. So it is designed to operate in a batch mode, flexible mode, or in a combination of the both the batch mode and the flexible mode. When in batch mode, the system processes parts of a single style in specific lot size before physical and programmed changeover to the next batch specifications. So in flexible mode of the system satisfy three of the four tests of flexibility, the exception being error recovery, since if the CNC machine center breaks down, the system uh, will stop. So this is the figure of a single machine cell in which we will use, in which we may use a single machine or a machining center which is connected to a material handling system, or we can say the loading and unloading system. तो इसमें क्या होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल मशीन को या फिर कोई भी एक मशीनिंग सेंटर को जो कनेक्टेड होगा किससे, जो कनेक्टेड होगा आपका लोडिंग या अनलोडिंग सिस्टम से. और हम इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको बैच मोड में यूज़ कर सकते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको किस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सिबल में. हम इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, मीन्स फ्लेक्सिबल और बैच मोड दोनों का भी कॉम्बिनेशन हम इसमें बना सकते हैं. इसमें क्या क्या है, इसमें हमारे पास जैसे ये फिगर में जो शो किया है, इसमें एक CNC मशीनिंग सेंटर है, एक ये टूल स्टोरेज है, जिससे हम टूल जो है जो CNC मशीन सेंटर में वो चेंज हो सकता है, स्पिंडल है जिसमें टूल हम कनेक्ट कर सकते हैं. और इसमें क्या लगा हुआ है, एक लोडिंग और अनलोडिंग का एक सिस्टम लगा हुआ है, पैलेट्स हैं, डिफरेंट शटल ट्रैक्स हैं, पैलेट ट्रैक्स हैं, जिसके थ्रू लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स की, किसी भी प्रोडक्ट की. So this is the single manufacturing system which contains only loading and loading system with machine or a machining center. So next is the flexible manufacturing cell. So a flexible manufacturing cell contains two or three processing workstations, means we have a different two or three processing workstations or a machine or a machining centers or a turning centers plus a part handling system. So this setup can operate in flexible mode or in batch mode as necessary, and can readily adapt to evolving production schedule and increase production volumes. So since there is more than one machine, error recovery is possible by rerouting the field machine intended parts for processing to the other two machines in the system, and new part design can be introduced with relative ease into the setup. अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में क्या होता है, हमारे पास एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एक सिंगल मशीन सेल था. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में क्या है, जैसे सिंगल मशीन सेल में एक सिंपल मशीन सेल है जिसमें एक मशीन लगी हुई है, लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम लगा हुआ है. लेकिन एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में क्या होगा, एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग सेल कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, मतलब इसमें तीन या तीन से ज़्यादा क्या है, एक मशीन्स होंगी या टर्निंग सेंटर्स होंगे या मशीनिंग सेंटर्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे लोडिंग और
अनलोडिंग डिवाइसेस से या मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से, सिंपल से हम बात है, जो उससे वो कनेक्टेड होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें जो एरर रिकवरी है वो पॉसिबल है, उसमें एरर रिकवरी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि उसमें ना एक सिंगल मशीन थी। यहाँ क्या है कि एरर रिकवरी पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक मशीन से गड़बड़ है तो हम दो मशीन से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में क्या है, एरर रिकवरी जो है वो पॉसिबल है। कैसे, वो रीराउट कर सकते हैं हम जो भी फील्ड मशीन है, तो जो हमारी एरर रिकवरी है वो इसमें वो पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल जो मशीन सेल होती हैं वो कई सारी सिंगल मशीन सेल हैं, वो एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिंपल। सो इसको मल्टीपल सिंगल मशीन सेल बोल सकते हैं बेसिकली। सो विच इज कॉल्ड एट द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। फ्लेक्सिबल यहाँ बन इसलिए आया क्योंकि इसमें एरर रिकवरी का जो है वो ऐड हो गया है, किसके कंपैरिजन में, सिंगल मशीन सेल में, क्योंकि वहाँ एरर रिकवरी पॉसिबल नहीं थी। सो next is a flexible manufacturing system. So what is flexible manufacturing system? So it consists of 4 or more processing stations connected mechanically by a common parts handling system and electronically by a distributed computer system. So FMS is larger than the flexible manufacturing cell, not only in the number of workstation it may contain, but also the number of supporting station in the system, such as part, pallet, washing stations, coordinate measuring machines, storage stations, or so on. So computer control is also more sophisticated. It includes functions not found in the flexible manufacturing cell, such as it includes functions not found in the flexible manufacturing cell, such as tool monitoring. Now we will discuss about the flexible manufacturing system, how it is different from the flexible manufacturing cell and a single manufacturing cell. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में क्या होता है, वहाँ क्या है, मैक्सिमम जो तीन है, तीन हम वर्क स्टेशन ले सकते हैं या तीन मशीन ले सकते हैं। अगर तीन मशीन से ऊपर हुई है ना, तीन मशीन वहाँ से भी ऊपर ले सकते हैं, तो तीन मशीन से अगर यहाँ इस केस में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है, अगर तीन मशीनें या तीन मशीन से ऊपर हैं और उसके साथ साथ मशीन के साथ साथ क्या है, या वर्क स्टेशन है उसके साथ साथ क्या ऐड है, उसके साथ साथ अपने पास क्या ऐड है, हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ऐड है, स्टोरेज सिस्टम ऐड है, वॉशिंग स्टेशन में ऐड है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है वो भी उस सिस्टम में ऐड है, और कंप्यूटर भी उससे कनेक्टेड है। मतलब कंप्यूटर क्या है, जो कंप्यूटर जो लगा हुआ है वो क्या करता है, दैट कंट्रोल्स ऑल द मशीन्स विच आर कनेक्टेड टू द वर्क स्टेशन। अब कौन कौन सी मशीन कनेक्टेड है, एक तो हमारी जो CNC मशीनें हैं या मशीनिंग सेंटर है वो है, उसके साथ साथ क्या कनेक्टेड है, उसके साथ लोडिंग और अनलोडिंग है, उसके साथ मटेरियल हैंडलिंग भी कनेक्टेड है, उसके साथ वॉशिंग स्टेशंस भी कनेक्टेड हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स भी कनेक्टेड हैं, स्टोरेज सिस्टम भी कनेक्टेड है। तो ये सारी जो मशीन्स हैं बेसिकली, जो सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो उससे कनेक्टेड हैं एक मशीनिंग सेंटर से, वो किससे कंट्रोल हो रहे हैं, वो एक सिंगल कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहे हैं, विच इज़ वेरी मच सोफिस्टिकेटेड. So this flexible manufacturing system is very much sophisticated and its control is more sophisticated. और इसमें क्या है, इसके अलावा इसमें एक जो टूल मॉनिटरिंग का फंक्शन है वो भी ऐड है। तो इसमें वहाँ क्या होता था, सिंगल जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल में उसमें क्या होता था, तीन या तीन से ज़्यादा होते थे या तीन होते थे, तो वहाँ केवल मटेरियल हैंडलिंग है वही उससे कनेक्टेड होता था। देयर इज नो कंप्यूटर टू कंट्रोल द मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम. So it is basically we can say as a semi-automatic. So it is the flexible manufacturing system is fully we can say it is a fully automatic system. So इसमें क्या है, सारी चीज़ें एक सारे से, तो एक परफेक्ट सिस्टम बनता है जो कि एक फ्लेक्सिबल है। मैंने बताया था सिस्टम की डेफिनेशन कि व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम क्या होता है, जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं, है ना, जिसमें कई सारे पार्ट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो क्या करते हैं, हमें एक आउटपुट देते हैं, है ना, एक परफेक्ट आउटपुट देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम. इफ द सिस्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पस देन इट इज कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. और इफ इट इज अ फ्लेक्सिबल then it is called as a flexible manufacturing system. What is flexible, we have already discussed in the previous lecture. So this is all about
So this is basically the figure of flexible manufacturing system, in which we have a storage system, we have a different workstation. So we have 3, 4, 5, 6, 7 workstation. We have a coordinate measuring machines for the parts. We so we can so there is a quality control also in the system. So we have a pallet water washing station, we have a storage system, we have a shuttle card, we have a material handling system which is connected to each other to make a system flexible. To make a system flexible, which is called a flexible manufacturing system. So this is a flexible manufacturing inspection station is also there in the flexible manufacturing system. In this graph shows the annual production of flexibility or cost incurred and the number of machine. So in a single machine cell, we have a less number of machine as comparison to flexible manufacturing system or flexible manufacturing cell. uh, and as well as the annual production is also less. सो इसमें हम ये है कि जिस हिसाब से हम मशीन्स, मतलब जिस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे, जिस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अपनी मशीन्स बढ़ाएंगे, उस हिसाब से सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता जाएगा. और जितना ज़्यादा सिस्टम फ्लेक्सिबल होता जाएगा, उस हिसाब से क्या है, जो उसका एनुअल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा, और जो उसमें कॉस्ट इनकर्ड है वो भी बढ़ती जाएगी. फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, एनुअल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कॉस्ट इनकर्ड. लेकिन कॉस्ट इनकर्ड को हम देखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से. मतलब जिस रेट से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या उस रेट से कॉस्ट बढ़ रही है? ऐसा नहीं होगा. जो रेट है प्रोडक्शन का, जो रेट है एक्चुअली, जो जिस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एनुअल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर हम मशीन को इंक्रीज कर रहे हैं और मैं जो हमारा सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल बन रहा है, और उस हिसाब से क्या है, हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा. लेकिन जो रेट होगी प्रोडक्शन के बढ़ने की, वो रेट जो कॉस्ट है उसकी, है ना, उसकी नहीं होगी. सो बेसिकली प्रोडक्शन की रेट जो है वो ज़्यादा होगी, जो कॉस्ट इनकर्ड है उसकी जो रेट है बढ़ने की वो इतनी नहीं होगी. तो सिस्टम क्या है, इकोनॉमिकल बनेगा हमारा एज कंपेरिजन टू सिंगल मशीन सेल और अ कन्वेंशनल सिस्टम विच इज़ यूज्ड इन 50s or 60s or later 70s. So now this is the time of a flexible manufacturing system. So this is all about the types of flexible manufacturing system. In the next lecture, in the lecture number 7, we will discuss about the FMS layout. The FMS layout means the FMS line layout, FMS loop layout, FMS rectangular layout, FMS ladder layout, and the open field layout. So these all are the layouts we will discussed in the next lecture, or we can say that in the lecture number 7. So thank you very much. Thank you.